السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ آپ نے جنت کی باتیں سنی ہیں جو مرنے کے بعد ملے گی، معلوم نہیں کسے ملتی ہے کسے نہیں۔ اندلس میں آپ جائیں گے تو پکار اٹھیں گے کہ یہی وہ جنت ہے جس کا وعدہ خدا نے کیا ہے۔ امیر افریقہ، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ اندلس کا دروازہ میرے اختیار میں ہے، میں کھول دوں گا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ جولین نے اندلس کے قدرتی حسن اور زرخیزی وغیرہ کو ایسے دل نشین الفاظ اور انداز سے بیان کیا کہ موسیٰ بن نصیر پر سحر ستاری ہو گیا، لیکن وہ معمر اور تجربہ کار آدمی تھا۔ وہ عیسائیوں اور یہودیوں کی سحر انگیزی اور دلکش فریبکاری سے واقف تھا۔ اس نے اشارہ کیا، سب آدمی اس کے اپنے اور جولین کے بھی باہر چلے جائے۔ کمرے میں موسیٰ اور جولین رہ گئے تھے اور ترجمان بھی وہاں موجود رہا۔ جولین، موسیٰ بن نصیر نے کہا، تم میرے لیے بہت ہی خوبصورت جال بچھا رہے ہو۔ کیا تم عقل سے اتنے عاری ہو گئے ہو کہ یہ بھی سوچنے کے قابل نہیں رہے کہ جس پر تم اپنی زبان کا سحر طاری کرنے چلے ہو وہ بہت سے میدانوں کا کھلاڑی ہے اور اس کی نظریں زمین کی تہوں میں بھی جھانک سکتی ہیں؟ بے شک امیر موسیٰ، جولین نے کہا، میں یہ سب کچھ سوچ کر آیا ہوں اور میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تم نے مجھے چھوٹا بھائی سمجھ کر تم کہا ہے۔ اجازت دو کہ میں بھی تمہیں تم کہوں۔ اس نے دونوں ہاتھ موسیٰ کی طرف بڑھا کر کہا، میری دلی دوستی قبول کرو اور میرے دل میں جو مخفی ہے وہ بھی سن لو۔ موسیٰ بن نصیر نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیے۔ چند لمحوں بعد جولین نے اپنے ہاتھ موسیٰ کے ہاتھوں سے نکال لیے اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے بڑی تیزی سے نیام تلوار سے نکالی۔ اس سے زیادہ تیزی سے موسیٰ کا ہاتھ اپنی تلوار پر چلا گیا جو اس کی کرسی کے ساتھ کھڑی رکھی تھی، لیکن جولین کی اگلی حرکت یہ تھی کہ اس نے تلوار اپنے دونوں ہاتھوں پر رکھ لی جس طرح کوئی چیز کسی کو پیش کرنے کے لیے اٹھائی جاتی ہے۔ جولین موسیٰ کے سامنے ایک قدم دور کھڑا ہو گیا، پھر وہ جھکا اور تلوار موسیٰ بن نصیر کے پاؤں میں رکھ دی۔ وہ سیدھا ہوا اور ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ امیر موسیٰ، جولین نے پرجوش اور جذباتی لہجے میں کہا، یہ وہ تلوار ہے جو کبھی جھکی نہیں، اس نے دشمنوں کی اکڑی اور تنی ہوئی گردنیں کاٹی ہیں۔ گستاخی نہ سمجھنا موسیٰ، اسے تکبر اور غرور نہ سمجھنا، یہ وہ تلوار ہے جسے تم بھی نہیں جھکا سکے۔ تمہاری بربر فوج بھی اس تلوار کی چمک دیکھ کر سیوستہ کے قلعے سے پیچھے ہٹ گئی تھی۔ آج یہ تلوار تمہارے قدموں میں پڑی ہے۔ کوئی بادشاہ، کوئی سالار اتنی آسانی سے اپنی تلوار اپنے دشمن کے قدموں میں نہیں رکھ دیا کرتا، لیکن تم میرے دشمن نہیں، اب ہم بھائی ہیں، دوست ہیں۔ آج ایک دوست اپنے دکھ اپنے دوست کے سینے میں ڈالنے آیا ہے، قبول کرو گے موسیٰ؟ موسیٰ بن نصیر نے جھک کر اپنے قدموں سے جولین کی تلوار اٹھائی اور اپنے ہاتھوں پر رکھ کر جولین کو پیش کی۔ مجھے مسرت ہوئی ہے یہ دیکھ کر کہ تم نے مجھے دوست اور بھائی کہا ہے، موسیٰ نے کہا۔ میں تمہاری تلوار کی قدر کرتا ہوں۔ موسیٰ نے اس کی تلوار اپنے ہاتھوں اس کی نیام میں ڈال دی اور کہا، کیا اب میرا دوست اپنے دل کا دکھ مجھے سنائے گا؟ ہاں، جو سنانے آیا ہوں وہ سنا کے جاؤں گا، جولین نے کہا۔ اگر امیر موسیٰ کی بیٹی کو کوئی بے آبرو کر دے تو موسیٰ اسے کیا سزا دے گا؟ جرم ثابت ہونے پر مجرم کو سنسار کر دیا جائے گا، موسیٰ نے جواب دیا۔ اور اگر مجرم کسی ملک کا بادشاہ ہو تو موسیٰ اس کی بادشاہی کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، موسیٰ نے جواب دیا، اور اس بادشاہ کے خاندان کی تمام عورتوں کو لونیاں بنا کر ساتھ لے آئے گا۔ اور اگر وہ مظلوم بیٹی تمہارے دشمن کی ہو، اگر مظلوم بیٹی اور اس کا باپ فریادی بن کر آئیں گے تو موسیٰ اس کا بھی انتقام لے گا، موسیٰ نے جواب دیا۔ لیکن یہ دیکھنا ضروری ہوگا کہ اپنی سلطنت کسی خطرے میں تو نہیں پڑ جاتی۔ نہیں موسیٰ، جولین نے کہا، تمہاری سلطنت اور تمہاری عمارت کسی خطرے میں نہیں پڑے گی بلکہ تمہاری سلطنت کو وسعت ملے گی۔ اب سنو موسیٰ، وہ مظلوم باپ میں ہوں، بے آبرو ہونے والی بیٹی میری ہے، پھر تمہاری تلوار نیام میں کیوں پڑی ہے؟ موسیٰ نے پوچھا، اور یہ تلوار میرے قدموں میں کیوں گری ہے؟ اس لیے کہ مجرم مجھ سے زیادہ طاقتور ہے، جولین نے کہا۔ وہ اندلس کا بادشاہ ریڈرک ہے۔ ریڈرک تک تمہاری بیٹی کس طرح پہنچی تھی؟ امیر موسیٰ، جولین نے جواب دیا، میں بے شک شاہ ریڈرک کا باجگزار ہوں، لیکن میرا تعلق اندلس کے شاہی خاندان کے ساتھ ہے۔ کسی وقت میری یہ ریاست آزاد تھی، وقت گزرنے کے ساتھ سیوستہ کے دفاع کی ذمہ داری اندلس کے بادشاہ نے سنبھال لی اور پھر سیوستہ اندلس کا حصہ بن گیا۔ میں حکمران سے گورنر بن گیا۔ شاہی خاندانوں کے ہاں رواج ہے کہ جس کی بیٹی 15-16 سال کی عمر کو پہنچ جاتی ہے وہ بیٹی کو اندلس کے شاہی محل میں شاہی آداب، سلیقہ شعاری وغیرہ کی تربیت کے لیے بھیج دیتا ہے۔ شاہی گھرانے بعض اوقات اپنی 10-12 سال عمر کی بیٹیوں کو وہاں بھیج دیتے ہیں۔ میں نے اپنی بیٹی فلورینڈا کو اس دستور اور رواج کے مطابق شاہ ریڈرک کے محل میں بھیج دیا۔ اس کی عمر 17 سال کے لگ بھگ ہے۔ چونکہ لڑکیوں کو آداب و اخلاق کی تربیت دی جاتی ہے اس لیے انہیں شاہی محل میں عورتوں کی نگرانی میں رکھا جاتا ہے، مردوں کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ لیکن میری بیٹی نے مجھے اطلاع بھیجی کہ شاہ ریڈرک نے دھوکے میں اس کی آبرو ریزی کی ہے۔ تمہاری بیٹی اب کہاں ہے؟ موسیٰ نے پوچھا۔
मैं उसे तुलैता से ले आया हूँ, जूलियन ने जवाब दिया। तुम जानते हो कि तुलैता उंदुलुस का दारुल हुकूमत है। मेरी बेटी अब सियोस्ता में है। चाहो तो मेरी बेटी को यहाँ बुलाकर पूछ सकते हो। मूसा बिन नसीर, मैं रेड्रिक से अपनी बेइज्जती का इंतकाम लेना चाहता हूँ। इसका एक तरीका तो यह है कि मैं उसे कत्ल करा दूं, लेकिन यह मुमकिन नजर नहीं आता। वो बहुत कम बाहर निकलता है तो उसके इर्द गिर्द मुहाफिजों का हिसार होता है। दूसरा तरीका जो मैं सोचकर तुम्हारे पास आया हूँ वो ये है कि तुम उंदुलुस पर हमला कर दो। मेरी पूरी मदद तुम्हें हासिल होगी। अलबत्ता मैं सामने नहीं आऊंगा। बेशक उंदुलुस की फौज लातादाद है। तादाद को देखो तो तुम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन जो जज्बा और नज़्म-ओ-ज़ब्त तुम्हारी फौज में है वो रेड्रिक की फौज में नहीं। ये मैं तफसील से सुनाऊंगा। मैं यकीन से कह सकता हूं कि तुम्हारी फौज उंदुलुस को फतह कर लेगी। मैं रेड्रिक को कत्ल करने तक अपने अंजाम को महदूद नहीं रखना चाहता। मैं उसकी बादशाही को खाक में मिलाना चाहता हूं। मेरा ये इरादा सिर्फ तुम पूरा कर सकते हो और इसका पूरे का पूरा फायदा तुम्हारा होगा। सिर्फ ये दरखास्त करूंगा कि सियोस्ता को आजाद रहने देना। ये तारीख का एक मशहूर वाकया है जिसे मौर्रिखों और बाद के तारीखदानों ने तफसील से बयान किया है। इस वाक़े पर ड्रामे भी स्टेज पर खेले जाते रहे और ये वाकया नावलों का मौजू भी बना। जूलियन की दो बेटियां थीं, एक का नाम फ्लोरेंडा और दूसरी का मैरी था। फ्लोरेंडा जूं बड़ी होती जा रही थी उसका हुस्न निखरता आ रहा था। उसकी मां कहा करती थी कि मेरी बेटी जितनी खूबसूरत निकलती आ रही है उसके लिए इतना खूबसूरत शहजादा तो मुश्किल से ही मिलेगा। मां को मालूम नहीं था कि उसकी बच्ची ने अपने लिए एक शहजादे का इंतखाब उम्र के 14वें साल में ही कर लिया है, और वो शहजादा नहीं, वो बादशाही अस्तबल के एक शहसवार का बेटा था। ये शहसवार शाही खानदान की औलाद और फौजी अफसरों की औलाद को घुड़सवारी और नेजाबाजी की तरबियत देता था। शाही खानदान और फौज के आला हलकों में उसे ऊंचा मुकाम हासिल था। उसका रुतबा भी ऊंचा था। हेनरी उसका नौजवान बेटा था। फ्लोरेंडा जब 13-14 साल की थी, हेनरी की उम्र उस वक्त 17-18 साल थी। हेनरी को बाप ने लड़कपन में ही शहसवार बना दिया था। नेजाबाजी का भी वो माहिर हो गया था। 14 साल की उम्र में जूलियन ने अपनी बेटी फ्लोरेंडा को घुड़सवारी के लिए हेनरी के बाप को हुक्म दिया। फ्लोरेंडा सुबह और शाम घुड़सवारी के लिए जाने लगी। मेरी बेटी को लड़की ना समझना, जूलियन ने हेनरी के बाप को हिदायत देते हुए कहा था। तुम जानते हो कि मेरा कोई बेटा नहीं। शायद यही वजह है कि यह लड़की बेटी की बजाय बेटा बनती जा रही है। मेरे लिए वो बेटे की कमी पूरी कर रही है। इसे मर्द समझकर शहसवार बनाना है और इसे नेजाबाजी के साथ साथ दौड़ते घोड़े से तलवार और कुल्हाड़ी चलाने की तरबियत देनी है। 1.5-2 महीनों में फ्लोरेंडा घुड़सवारी में इतनी पुख्ता हो गई कि उसके नीचे घोड़ा लंबे खड़ और ऊंची रुकावटें फलांग जाता था। उसका उस्ताद उसे अकेले दूर नहीं जाने देता था, लेकिन फ्लोरेंडा शहजादी थी। वो उस्ताद पर अपना हुक्म चलाकर घोड़ा ले जाती थी। उस्ताद डरता था कि ये लड़की अकेली कहीं जंगल में कोई रुकावट फलांगती घोड़े से गिर पड़ी या घोड़ा गिर पड़ा और वो उसके नीचे आ गई तो उस्ताद की शामत आ जाएगी। उस्ताद ने इसका इलाज ये सोचा कि जब फ्लोरेंडा घोड़ा दौड़ाती जंगल से निकल जाती तो उस्ताद अपने बेटे हेनरी को उसके पीछे घोड़े पर दौड़ा देता। हेनरी को अपने पीछे या अपने साथ देखकर फ्लोरेंडा ने एतराज न किया। एक रोज उसने जंगल में घोड़ा रोका। हेनरी ने अपना घोड़ा उसके करीब जाकर रोक लिया। फ्लोरेंडा ने उसकी तरफ देखा और उसके होठों पर तबस्सुम आ गया। हेनरी मर्दाना हुस्न और वकार का मुजस्समा था। उसके जिस्म की साख्त बताती थी कि मर्द मैदान है। उसमें मैदान जंग में मर्दों को तलवार से तड़पाने की ताकत और महफिलों में औरतों को तड़पा देने वाली वजाहत और कशिश थी। मुझे घोड़े से उतारो हेनरी, फ्लोरेंडा ने कहा। इतनी थक गई हूं कि उतरा नहीं जाता। ये शहजादी का हुक्म था। हेनरी चश्मे-ज़दन में अपने घोड़े से कूदकर और शहजादी के घोड़े के करीब जाकर उसकी रिकाब पर हाथ रखा, लेकिन शहजादी ने हेनरी की तरफ झुककर बाजू फैला दिए। दूसरे लम्हे वो हेनरी के बाजुओं में थी। हेनरी उसे जमीन पर खड़ा करके पीछे हटा तो शहजादी ने उसे अपने बाजुओं में से निकलने न दिया। मत तड़पो हेनरी, फ्लोरेंडा ने कहा। तुम मुझे अच्छे लगते हो, बहुत अच्छे लगते हो। मैं तुम्हारे एक गुलाम का बेटा हूं शहजादी, हेनरी ने डरे डरे से लहजे में कहा। काउंट जूलियन को पता चल गया तो गलत न समझो हेनरी, फ्लोरेंडा ने कहा। मैं लड़की तो हूं लेकिन खसलत लड़कियों वाली नहीं। मुझे तुम्हारा जिस्म नहीं चाहिए। क्या तुम उस मोहब्बत से वाकिफ नहीं जो दिल से उठती है और रूह में उतर जाती है? नहीं शहजादी, मुझे शहजादी कहना छोड़ दो, फ्लोरेंडा ने कहा। मैं तुम्हें मोहब्बत करने का हुक्म नहीं दे रही, मुझे फ्लोरा कहा करो। हेनरी ने उसे फ्लोरा कहना शुरू कर दिया। शहजादी शाही चबूतरे से उतर आई। हेनरी सबके सामने उसका नौकर था, लेकिन किले से बाहर जंगल में जाकर उसका महबूब भी था और चाहने वाला भी। फ्लोरेंडा ने पहले रोज उसे जो कहा था कि मुझे तुम्हारा सिर्फ जिस्म नहीं चाहिए, वो उसने सच कर दिखाया। उनकी मोहब्बत दिलों से उठी और रूह में उतर गई थी। हेनरी ने उसे शहसवार बनाकर नेजाबाजी और तेवजनी का भी माहिर बना दिया था। फ्लोरेंडा के मां बाप को
हल्का सा भी शक न हुआ कि उनकी बेटी अपनी जिंदगी के साथी का इंतखाब कर चुकी है। फ्लोरेंडा और हेनरी ने यह तो सोचा ही नहीं था कि उनकी शादी कभी नहीं हो सकेगी। जूलियन मखमल में बोरिया का पैबंद नहीं लगाएगा। वो तो मोहब्बत के नशे में अपनी अपनी हैसियत को ही नहीं, दुनिया को ही भूल गए थे। वक्त उड़ता गया और 2 साल गुजर गए। एक रोज मां ने फ्लोरेंडा को बताया कि उसका बाप उसे तोलेता ले जा रहा है, जहां उसे कमोबेश 1 साल उंदुलुस के बादशाह रेडरिक के शाही महल में गुजारना पड़ेगा। क्यों, क्या तुम ये नहीं जानती? मां ने कहा, शाही खानदानों की लड़कियां वहां शाही आदाब और अखलाक और शाहाना तौर तरीके सीखने जाती हैं। क्या मैं उजट हूं? फ्लोरेंडा ने कहा, क्या मैं शाही आदाब और तौर तरीकों से वाकिफ नहीं? मुझ में क्या कमी नजर आ रही है आपको? मैं नहीं जाऊंगी। मैंने उन शाही मोहल्लात की बहुत सी बातें सुनी है। इन शाही मोहल्लात में जो आदाब और अखलाक राइज हैं, उनकी कई कहानियां सुन चुकी हूं। मां ने उसे समझाया बुझाया। फ्लोरेंडा ने उसकी एक न सुनी। वो यही कहती रही कि उन बादशाहों के यहाँ कोई अखलाक नहीं होता, कोई किरदार नहीं होता। लेकिन जब बाप ने उसे हुक्म के लहजे में उंदुलुस चलने को कहा तो उसे इनकार की जरूरत न हुई। वो जानती थी कि उसका बाप कितना जाबिर है। जूलियन और उसकी बीवी फ्लोरेंडा को साथ लेकर उंदुलुस के दारुल हुकूमत तोलेता चले गए और उसे रेडरिक के शाही महल में छोड़ आए। उन्होंने फ्लोरेंडा को रेडरिक के सामने भी पेश किया था। रेडरिक ने फ्लोरेंडा के हुस्न और नौजवानी से मुतासिर होकर और चौंक कर कहा, इतनी हसीन? जूलियन, इस लड़की को किसी बराए नाम शहजादे के साथ ब्याह कर जाया न कर देना। ये बेटी नहीं, जूलियन ने हंसकर कहा था, ये मेरा बेटा है। फ्लोरा के मां बाप जब वहां से चले थे तो उसके आंसू निकल आए थे। 8-10 दिन गुजरे तो एक रोज हेनरी के बाप ने जूलियन को बताया कि उसका बेटा लापता हो गया है। जूलियन के हुक्म से उसे हर जगह तलाश किया गया। जंगल और सहरा में भी घुड़सवार भेजे गए, मगर हेनरी का कहीं नामो निशान न मिला। वो वहां होता तो मिलता। वो समुंदर पार कर गया था। कई दिनों की मुसाफत के बाद तोलेता जा पहुंचा। वो फ्लोरेंडा की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सका था। वो सीधा शाही अस्तबल में चला गया और अस्तबल के जिम्मेदार अफसर से मिला और नौकरी की दरखास्त की। अस्तबल के अफसर ने उसका इम्तिहान लेने के लिए या उसका मजाक उड़ाने के लिए एक इंतहाई अखड़ और मुंह जोर घोड़े की तरफ इशारा करके कहा कि इसकी सवारी करके दिखाओ। ये घोड़ा कम ही किसी के काबू में आता था। हेनरी ने उस घोड़े पर जीन कसी और उस पर सवार हो गया। अस्तबल के तमाम कारिंदे हेनरी के गिरने का तमाशा देखने के लिए इकट्ठे हो गए। घोड़े ने अपना अखड़पन दिखाना शुरू कर दिया। सवार के किसी इशारे को खातिर में ही नहीं लाता था, लेकिन हेनरी ने थोड़ी सी देर में उसे राम कर लिया। उसे सरपट दौड़ाया, हर चाल चलाया और घोड़ा दौड़ के मैदान में रुकावटें फैलान के सबको हैरान कर गया। फिर उसने नेजाबाजी और तेवजनी के जौहर दिखाए। इसके नतीजे में उसे अच्छे ओहदे पर नौकरी मिल गई। उसका मकसद सिर्फ नौकरी का हुसूल नहीं था, वो फ्लोरेंडा से मिलना चाहता था। चंद दिनों में ही उसने मालूम कर लिया कि फ्लोरेंडा कहां होती है, लेकिन उसे फ्लोरेंडा तक रसाई की कोशिश न करनी पड़ी। एक रोज 5-6 शहजादियां घुड़सवारी के लिए आ गई। उनमें फ्लोरेंडा भी थी। ये सब फ्लोरेंडा की तरह दूसरे शहरों से शाही महल में तालीम और तरबियत के लिए आई थी। इस तरबियत में घुड़सवारी भी शामिल थी। फ्लोरेंडा ने हेनरी को देखा तो हैरान रह गई। वो शहजादी थी, किसी भी मुलाजिम के साथ वो कोई बात कर सकती थी। वो सीधी हेनरी के पास पहुंची और बुलंद आवाज से उसके साथ बातें करने लगी ताकि किसी को शक ना हो। तुम्हारा नाम क्या है? उसने हेनरी से पूछा। ऑगस्टस। हेनरी ने अपना नाम गलत बताया। यहां उसने सबको अपना यही नाम बताया था। मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है, फ्लोरेंडा ने कहा। देखा होगा शहजादी, हेनरी ने कहा। मैं कई जगहों पर रहा हूं। बाकी शहजादियां भी उनके इर्द गिर्द आन खड़ी हुई थी। वो हंसने खेलने के मूड में ही आ रही थी। अस्तबल में तुम्हारा क्या काम है? फ्लोरेंडा ने पूछा। ये बड़ा अच्छा सवार है शहजादी, अस्तबल का अफसर जो पास ही खड़ा था उसने कहा। शहसवार है, आज इसी को हमारे साथ भेजो, फ्लोरेंडा ने कहा। मैं देखती हूँ ये कितना बड़ा शहसवार है। उस रोज हेनरी को शहजादों के साथ भेज दिया गया। किले के बाहर जाकर फ्लोरेंडा ने अपनी साथी शहजादियों से कहा कि वो इस शहसवार के साथ घोड़ा दौड़ाकर देखेगी कि ये घुड़सवारी का कितना कुछ माहिर है। दूसरे लम्हे फ्लोरेंडा और हेनरी के घोड़े पहलू ब पहलू सरपट दौड़े जा रहे थे। वो हरी भरी पहाड़ियों की ओट में चले गए। कुछ वक्त बाद वो पहाड़ियों से निकले। उन्होंने दिल की सारी बातें कर ली थी। हेनरी ने फ्लोरेंडा को बताया कि वो सियोस्ता में किसी को बताए बगैर यहाँ आ गया है। फौरन वापस चले जाओ, फ्लोरेंडा ने उसे कहा। मेरे बाप को पता चल गया कि तुम यहाँ हो तो पहला शक ये होगा कि तुम मेरे लिए यहाँ आए हो। सियोस्ता की शाही नौकरी छोड़कर यहाँ नौकरी करने की और कोई वजह नहीं जो तुम किसी को बताकर मुतमईन कर दो। कुछ दिन और रहने दो फ्लोरा, हेनरी ने कहा। 1-2 और मुलाकातों का मौका पैदा कर दो, फिर मैं चला जाऊंगा। अपने बाप को सब कुछ बताऊंगा कि सियोस्ता से जी उकता गया था, इसलिए उंदुलुस की सैर को निकल गया था। महल के इर्द गिर्द बागात थे जिनमें घने दरख्त, फूलदार पौधे और बेलें थी।
और बाज गोशे पेड़ पौधों और बेलों से ढके हुए थे। फ्लोरिंडा ने हेनरी को ऐसा ही एक गोशा बताया और एक ऐसा रास्ता भी बताया जो इस गोशे तक जाता था, लेकिन आधी रात के बाद इससे पहले और दिन को पकड़े जाने का खतरा था। हेनरी ने खतरा मोल लेकर 2 बार बाग के इस तारीख कोने में फ्लोरिंडा से मुलाकात की। फ्लोरिंडा ने भी खतरा मोल ही ले लिया था। बाहर से आई हुई शहजादी की कड़ी निगरानी की जाती थी, फिर भी फ्लोरिंडा इन दिनों रातों को अपने कमरे से नंगे पांव चोरों की तरह निकली और बाग में पहुंच गई थी। दूसरी मुलाकात में उसने हेनरी को 3 रातें बाद की रात को आने को कहा था। जिस दिन हेनरी ने बाग में आना था, शाह रेड्रिक 4-5 दिनों की गैर हाजिरी के बाद वापस आया था। उंदुलुस के किसी दूर दराज इलाके में कुछ बागी सर उठा रहे थे। शाह रेड्रिक खुद वहां गया था और बागियों के 3 सरदारों के सर कलम करवा दिए थे। वो शाम को वापस पहुंचा, थका हुआ भी और खुश भी कि वो बगावत को उठने से पहले ही खत्म कर आया है। उसने गुस्ल किया और शराब पीने बैठ गया। उसके अंदाज और बातों से जाहिर हो रहा था कि वो मुसर्रत और बदमस्ती से फटा जा रहा है और उसे पता नहीं चल रहा कि खुशी की तकरीब किस तरह मनाए। बादशाहों के यहाँ अपना दिल बहलाने के 2 ही तरीके होते हैं, औरत और शराब। रेड्रिक के यहाँ ये दोनों चीजों की कमी नहीं थी। उसके 2-3 दरबारी हुक्काम उसके साथ पी पिला रहे थे। कोई नया फूल है? रेड्रिक ने पूछा और शराब पिलाने वाली लड़की की तरफ देखा जो नौखेज और दिलकश थी। खुद ही नाक चढ़ाकर बोला, नहीं कोई कली, अध खिली कली। वही फूल है जो शाह उंदुलुस की खाबगाह में खुशबू बखेरते रहते हैं। एक हाकिम ने गुलामाना सी मुस्कुराहट से कहा। नहीं, उसने बदमस्ती के लहजे में कहा। कोई कली, उसने चुटकी बजाकर कहा। फ्लोरिंडा, जूलियन की बेटी। शहनशाह उंदुलुस, उसके एक मुशीर ने कहा। बाहर से आई हुई शहजादियां हमारे पास अमानत है, वो आदाब और अखलाक सीखने आती हैं। आज तक यहाँ आने वाली शहजादियों के साथ कभी मामूली सी छेड़खानी भी नहीं हुई। इस रिवायत को खराब न किया जाए, हम उसे उंदुलुस की मलिका बनाएंगे। शाह रेड्रिक ने नशे से लड़खड़ाती जुबान में कहा। तुम सब चले जाओ और फ्लोरिंडा को यहां भेज दो। शहनशाह मुअज्जम, मुशीर ने कहा। आपको खतरों से खबरदार करना और बचाना मेरा फर्ज है। खाइस फर्ज की अदायगी में मुझे अपनी जान देनी पड़े। हो सकता है आपकी ही तलवार आलम अताब में न्याम से निकल आए और मेरा सर तन से जुदा कर दे, लेकिन मेरी रूह मुतमईन होगी कि मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया था। कैसा खतरा? शाह रेड्रिक ने कहा। जूलियन से मुझे कैसा खतरा हो सकता है? पहली बात तो यह है कि उसकी बेटी फ्लोरिंडा शहनशाह उंदुलुस की खाबगाह में शब बिस्तरी को बहुत बड़ा एजाज समझेगी। अगर वो हमें कबूल नहीं करेगी और अपने बाप को बता देगी तो जूलियन हमारा क्या बिगाड़ लेगा? 2 इंच जमीन का मालिक हमारे 20 सवारों का मुकाबला करने के काबिल नहीं। उसकी ताकत हम है। अगर उसने अरबों और बर्बरों को सियोस्ता में रोका हुआ है और उन्हें उंदुलुस की तरफ आने नहीं दे रहा, तो उसकी वजह सिर्फ ये है कि उसकी पीठ पर हमारा हाथ है। अगर हम अपना हाथ खींच लें तो अरब और बर्बर मुसलमान उसके कले की ईंट से ईंट बजा दें और उसकी दोनों बेटियों को लोनियां बनाकर ले जाए। अगर हमने उसकी बेटी को कुछ देर के लिए अपनी खाबगाह में बुला लिया तो उसे खुश होना चाहिए। हो सकता है हम उसकी बेटी को अपनी मलिका बना लें। मैं सिर्फ ये कहता हूं शहनशाह मुअज्जम, मुशीर ने कहा, कि हमें दोस्त पैदा करने चाहिए, दोस्तों को दुश्मन न बनाया जाए। तुम कुछ नहीं समझते, शाह रेड्रिक ने शहनशाहों के लहजे में कहा। जाओ, उसे यहां भेजो। शहनशाहियत के साथ शराब के नशे ने मिलकर रेड्रिक की अक्ल पर पर्दा डाल दिया था। कुछ ही देर बाद फ्लोरिंडा इस तरह खुशो खुर्रम उसके कमरे में दाखिल हुई जैसे कोई बच्ची अपने बाप के बुलावे पर दौड़ी आई हो।